بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ ارے آپ اللہ کے اسم ذات سے مردہ قلوب کو زندہ کرتے اور ایسا زندہ کرتے کہ یہ جسم مر کے اگر قبر میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی اللہ اللہ ہوتی رہے۔ یہی پیغام حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا، یہی پیغام اس دھرتی پہ کبھی سلطان باہو نے دیا، اور آج اس دور میں حضرت گوہر شاہی ہیں خدا کی قسم جو پیغام دے رہے ہیں، اے فانی انسان تیرے جسم نے ایک دن مرنا ہے، لیکن اے حضرت انسان تیرے جسم کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے اگر اسے اللہ کے ذکر سے زندہ کر لے تو قبر کی کوٹھڑی کیا، ارے تیرے بستر کی نیند کیا، تو قبر کی کوٹھڑی میں چلا جائے تو یہ وہاں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ ایک وہ فقیر کہ جن کی نگاہ کیمیا تیرے باطن کو حیات ابدی عطا کرتی ہے، وہ مرد کلندر آج آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، نہ کسی سے چندہ مانگتے ہیں، نہ نذرانہ مانگتے ہیں، نہ بیعت کرتے ہیں۔ ارے اتنی بڑی دولت اگر لٹا رہے ہیں تو ایک ہی منشا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تیرا یار راضی ہو جائے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا باطن اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو آپ نے ادب کے ساتھ مرشد پاک کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ نعمت آپ کو عطا ہو جائے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد۔ عوضے کی دل آزاری نہیں ہے، کسی فرقے پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے، پیغام محبت ہے، محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپناتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں اس نے امت کے عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگائی اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ تو اسی وقت کو دیکھتے ہوئے بہت عرصہ پہلے ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے ماننے والے دونوں کافر و زندیق ہیں۔ فقیر کی نگاہ آنے والے وقت کو دیکھتی ہے، تو سرکار نے اس وقت کو دیکھتے ہوئے امت کو خبردار کیا کہ تمہارے اوپر ایک مشکل وقت آنے والا ہے، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس سے پہلے اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت بسا لو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت پاک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل پاک کر لو۔ تو عرض کی کہ دل پاک کیسے کریں، تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ ایک حدیث شریف ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، اور دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ۔ اللہ کے ذکر سے تمہارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس طرح یہ زہری تسبیح کے ساتھ تم اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بھی ایک تسبیح لگا دی ہے جو 24 گھنٹے ٹک ٹک کرتی رہتی ہے۔ اگر تم اس میں ایک دفعہ اللہ اللہ بیدار کر لو، پھر تم کام کاج میں لگ جانا، بیوی بچوں میں مصروف ہو جانا، اپنے بستر پر سو جانا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح تو جانتا ہے تیرے اندر ایک روح بند ہے،
फरमाया रूह जैसी एक और मखलूक है जिसे कल्ब कहते हैं। रूह तुम्हारे सीने के दाएं जानिब और कल्ब तुम्हारे सीने के बाएं जानिब। न रूह नजर आती है और न ही कल्ब नजर आता है। उस कल्ब की शक्ल बेजवी है, अंडे की तरह। अंडे को बेजा कहते हैं और आपके कल्ब को बेजा नासूती कहते हैं। अंडे के अंदर एक चूजा बंद है, नजर नहीं आता। इसके अंदर एक फरिश्ता बंद है, वो भी नजर नहीं आता। अंडे के गिर्द 3 छिलके हैं, 3 जाले हैं, साइंस कहती है। और सुल्तान साहब फरमाते हैं तुम्हारे इस कल्ब के गिर्द 1,80,000 शैतानी जाले हैं। अंडे को मुर्गी चाहिए और इस कल्ब को मुर्शिद चाहिए। मुर्गी जहरी गर्मी पहुंचाती है और मुर्शिद नूर की गर्मी पहुंचाता है। जब 22 दिन के बाद अंडा फटा तो उससे एक चूजा आजाद हुआ। चूजे ने पहला काम क्या किया? चूं चूं की। हमने उसे पढ़ाया या सिखाया नहीं है, बगैर सीखे सिखाए चूं चूं की, क्योंकि उसकी फितरत है चूं चूं करना। तो अल्लाह के वली ने आपके दिल पर निगाह डाली तो उसकी नजरों में नूर होता है जो आपके दिल तक चला जाता है। नूर की गर्मी से 1,80,000 शैतानी जाले टूट जाते हैं। जैसे अंडे से चूजा आजाद हुआ, ऐसे ही यहाँ से एक फरिश्ता आजाद हो जाता है। वो बगैर सीखे सिखाए चूं चूं और ये बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। क्यों? कि इसकी फितरत है अल्लाह अल्लाह करना। जब ये अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं अगर तेरा दिल एक दफा अल्लाह पढ़ ले तेरे 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। पूछा कैसे माफ होगे? फरमाया जुबान जिक्र करे ये बंदे के इख्तियार में और दिल जिक्र करे ये अल्लाह के इख्तियार में है। दिल उसी का जिक्र करता है जिसको अल्लाह चाहता है। जब किसी को अल्लाह चाहता है तो उसके पिछले गुनाह माफ कर देता है। फिर आप काम काज में लग जाएंगे, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। बीवी बच्चों में मसरूफ है, कारोबार कर रहे हैं, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता है। इसको कहते हैं दस्तकार में दिल यार में। ताकि आप अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, दिल वहां भी अल्लाह अल्लाह करता है। फिर सुल्तान साहब फरमाते हैं कुछ जागते हो सोते हो, कुछ सोते हो जागते हो। फिर आपका दिल 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करता रहेगा और उसमें नूर आ जाता है। नूर कैसे आता है? जिस तरह पत्थर को पत्थर से टकराए तो चिंगारी उठती है, पानी पानी से टकराया बिजली पैदा हुई, अल्लाह का जिक्र आपस में टकराता है तो नूर पैदा होता है। वो नूर आपके दिल में इकट्ठा हो जाता है। जब नूर दिल में इकट्ठा हो जाता है तो आपको पता है कि सारा खून इंसान के दिल से गुजरता है, वो खून के जरिए जिस्म में फैल जाता है। तो फिर उस नूर में क्या कमाल है? आपने सुना होगा कि शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है, खून में शामिल हो जाता है। जब वो इंसान के खून में दाखिल होता है तो कुछ शैतानी बीमारियां छोड़ देता है। वो शैतानी बीमारियां कौन सी हैं? हिर्स है, असद है, शहवत है, रियाकारी है, कीना, बुग़्ज़, बुखल, गुस्सा, तकब्बुर, ये सब शैतानी बीमारियां हैं जो इंसान को नापाक कर देती हैं और अल्लाह से दूर कर देती हैं। जब वो नूर आपके जिस्म में फैला तो उस नूर की नूरानियत से वो शैतानी बीमारियां जलना शुरू हो जाती हैं। एक दिन आता है आपका दिल पाक और साफ हो जाता है और अल्लाह के नूर से चमकने लग जाता है। जब ये अल्लाह के नूर से चमक उठता है तो हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं तुम्हारी नजर चमकते सितारों को देखती है और अल्लाह की नजर चमकते दिलों को देखती है। जब वो देखता है कि दिल नूर से चमक रहा है तो उस बंदे पर मेहरबान हो जाता है। तो जब किसी पर मेहरबान हो जाता है तो उसको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। तो जब किसी को अपना महबूब बना लेता है तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके अकीदा खत्म नबूवत में दरार आ जाए या शैतान उसको गुमराह कर सके। उसके लिए जो शख्स ये चाहता है कि उसका दिल जिक्र करे, सरकार ने आपको जिक्र कल्ब का इज़्ज़त अता कर दिया है। उसका तरीका यह है कि रात को सोते वक्त जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, थोड़ी देर के लिए दुनियावी ख्यालात अपने दिल से निकाल दें, शहादत की उंगली को कलम ख्याल करें, दिल पर इसमें अल्लाह लिखें। जब भी लिखना है बड़े प्यार के साथ लिखना है। जिसके जो भी मुर्शिद हैं अपने मुर्शिद को अपने तस्वर में लाएं। अगर किसी के मुर्शिद नहीं है तो सरकार का तस्वर कर लें कि ये उंगली कलम है, सरकार खुद पकड़ कर लिख रहे हैं, लिखते लिखते सो जाएं। दूसरा तरीका ये है किसी भी फारग वक्त में अपने दिल पर हाथ रखें, दिल की धड़कन महसूस करें। आप अपनी नब्ज पर भी हाथ रख सकते हैं। आपकी नब्ज आपके दिल के साथ बराबर धड़कती है। एक धड़कन के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। जब भी मिलाना है दिल ही दिल में मिलाना है। आपने चंद दिन कोशिश करनी है, साथ साथ अपने दिल में सरकार को पुकारना है। इंशाअल्लाह सरकार की निगाह की नियत से आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा। वो मान लेगा।